السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام سول ایوارڈز دینے کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ سفیر پاکستان جناب خلیل ہاشمی نے سفیر لو چاہوئی کو خلال قائد اعظم سے نوازا۔ 16 تاریخ کو بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام سول اعزاز دینے کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں سفیر پاکستان جناب خلیل ہاشمی نے صدر پاکستان کی جانب سے سفیر لو چاہوئی کو ہلال قائد اعظم سے نوازا۔ اعزاز حاصل کرنے والے جناب لو چاہوئی ممتاز سابق سفارتکار ہونے کے ساتھ ساتھ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب خلیل ہاشمی نے سفیر لو چاہوئی کو یہ اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ جناب لو چاہوئی کی شاندار خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے انہیں ایک قابل قدر دوست قرار دیا جو پاکستان کے عوام اور حکومت کی حمایت میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ سفیر لو چاہوئی نے اپنے ریمارکس میں صدر پاکستان کا انہیں ہلال قائد اعظم سے نوازنے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا، خاص طور پر پاکستان میں چین کے سفیر کی حیثیت سے مدت ملازمت کے دوران پاکستان کی قیادت کی جانب سے ملنے والی غیر معمولی حمایت کو یاد کیا۔ تقریب میں پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت پاکستانی اور چینی کمیونٹی سے وابستہ افراد نے بھرپور شرکت کی۔ چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو نے عالمی شہرت یافتہ برانڈز کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ نمائش میں 71 ممالک اور خطوں کے 4000 سے زائد برانڈز نے شرکت کی۔ جنوبی چین کے صوبے ہائنان میں جاری چوتھی انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو نے مختلف عالمی شہرت یافتہ برانڈز، نمائش کنندگان اور نئے آنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت ہائیکو میں ہونے والی یہ نمائش 18 اپریل تک جاری رہی، جس میں 71 ممالک اور خطوں کے 4000 سے زائد برانڈز نے شرکت کی۔ برطانیہ نے کنزیومر ایکسپو میں پہلی بار قومی پیویلین قائم کیا، جس میں لگژری اشیاء، غذا، صحت اور بیوٹی پروڈکٹس کے شعبوں میں 14 نمائندہ برانڈز متعارف کرائے گئے۔ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ نمائش میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنے نمائشی رقبے کو پچھلے سائز کے مقابلے میں 6 گنا بڑھایا۔ روس نے پہلی بار اپنے قومی پیویلین کے ساتھ ایکسپو میں حصہ لیا۔ ہائنان نے 1 اپریل 2023 سے براہ راست پک اپ طریقے متعارف کروا کر اپنے کچھ ڈیوٹی فری شاپنگ طریقوں کو مزید آسان بنایا، جس کے نتیجے میں مارچ کے آخر تک ایک سال میں 2 نئے پک اپ طریقوں کے ذریعے خریدی جانے والی اشیاء کی تعداد 4.3 ملین سے تجاوز کر چکی تھی، جس میں خریداری کی کل رقم 4 ارب یوان سے تجاوز کر گئی تھی۔ چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو میں معروف ملٹی نیشنل کمپنیز نے کاروباری اداروں کی میزبانی کا اہتمام کیا۔ نمائش ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں سب سے بڑی کنزیومر ایکسپو بھی ہے۔ جنوبی چین کے صوبے ہائنان میں چوتھی چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو میں غیر ملکی نمائش کنندگان کا کہنا تھا کہ وہ چینی مارکیٹ کے بارے میں پر امید ہیں اور اس کی مکمل صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی موجودگی کو بڑھاتے رہیں گے۔ ایکسپو کے مصروف مناظر سے پتہ چلا کہ ملک کی بڑی مارکیٹ اور مضبوط کھپت کی صلاحیت کے بارے میں نمائش کنندگان اور خریدار دونوں مثبت ہیں۔ معروف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے علاوہ اٹلی، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، ملیشیا اور دیگر ممالک نے بھی ایکسپو میں شرکت کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی میزبانی کا اہتمام کیا، جس کا مقصد چینی صارفین میں اپنی مصنوعات کی مقبولیت کو بہتر بنانا، چینی مارکیٹ کو بہتر طور پر سمجھنا اور اس کے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا تھا۔ یہ نمائش چین کی واحد قومی سطح کی نمائش ہے جس میں صارفین کی مصنوعات اور ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں سب سے بڑی کنزیومر ایکسپو بھی ہے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو مستحکم کرنے کی وسیع کوششیں ہونے لگیں۔ 70 سے زائد شہروں نے ہاؤسنگ پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق پالیسیوں کو بہتر بنا لیا ہے۔ ملک کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو مستحکم کرنے اور کاربن اخراج کو کم کرنے کی وسیع کوششوں میں چین بھر میں گھروں کے خریداروں کو کم توانائی والے مکانات خریدنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ملک کے 70 سے زائد شہروں نے ہاؤسنگ پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق پالیسیوں کو بہتر بنایا ہے۔
1 अप्रैल को शिमाली चीन के अंदरूनी मंगोलिया खुद इख्तियार इलाके के ऑर्डोस सिटी ने ग्रीन हाउसिंग के लिए कर्ज की हद में 10% इजाफा किया। इसके बाद बीजिंग हाउसिंग फंड मैनेजमेंट सेंटर ने सब्ज इमारतों की खरीदारी की तजवीज़ पर आवाम से राय तलब की। इस तजवीज़ से कर्ज की हद में 4 लाख युआन यानी तकरीबन $56,300 का इजाफा होगा, जिससे कम तवानाई वाले घरों के खरीदारों को 1.6 मिलियन युआन तक के कर्जों की इजाज़त मिलेगी। जनूबी चीन के ग्वांगझू शहर ने भी इसी तरह की पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, जिसमें ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए मुल्क के सर्टिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पर कर्जों के लिए एक टियर सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। हालिया अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन में नई तामीरात का 90% हिस्सा सब्ज इमारतों पर मुश्तमिल है। तवक्को है कि 2025 तक शहरी और देही इलाकों में तमाम नई इमारतें ग्रीन बिल्डिंग के मयार पर पूरा उतरेंगी। चीन की तजुर्बाती सैटेलाइट्स ने चांद पर मवासिलात और नेविगेशन टेक्नोलॉजी पर कामयाब तजुर्बात कर लिए। चीन ने 20 मार्च को 2 तजुर्बाती सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ लॉन्च किया था। चीन की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन लैब ने कहा है कि चीन के तजर्बाती सैटेलाइट थियानदू 1 और थियानदू 2 ने, जो छुईशियाओ 2 रिले सैटेलाइट के साथ चांद पर पहुंचे थे, चांद पर मवासिलात और नेविगेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से नए कामयाब तजर्बात किए हैं। इन सैटेलाइट्स ने ज़मीन और चांद की सतह के दरमियान आला काबिल एतमाद ट्रांसमिशन और रूटिंग के तजर्बात किए हैं और चांद की ताज़ा तरीन करीबी तस्वीर भी भेजी हैं। DSEL का कहना है कि तजर्बाती सैटेलाइट चांद पर मवासिलात और नेविगेशन टेक्नोलॉजीज़ पर मज़ीद तजर्बात करेंगे, ताकि बैनुल-अक़वामी क़मरी तहक़ीक़ी स्टेशन और चांद के मवासिलात, नेविगेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए चीन के अपने छुईशियाओ इंटीग्रेटेड सैटेलाइट नेटवर्क के डिज़ाइन और तामीर के लिए मजबूत मदद फराहम की जा सके। चीन ने 20 मार्च को छुईशियाओ 2 के साथ 2 तजर्बाती सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ लॉन्च किया था। छुईशियाओ का मदार चांद के करीब है और इसकी तैनाती चीन के मुस्तकबिल के चांद की तलाश के मिशंस बशमूल Chang'e 6, Chang'e 7 और Chang'e 8 के लिए एक अहम कदम है। Chang'e 6 को 2024 की पहली शिशमाही में लॉन्च किया जाएगा, जबकि Chang'e 7 को 2026 के आसपास और Chang'e 8 को 2028 के आसपास लॉन्च किया जाएगा। आने वाले बरसों में चीन के चांद मिशंस के लिए लैंडिंग और नमूने जमा करने के मकामात बुनियादी तौर पर चांद के जनूबी कुतुब के इलाके या चांद के दूर दराज हिस्से में हैं। चीन की तेज रफ्तार ट्रेन CR-450 रवां साल असेंबली लाइन से चलेगी। ट्रेन जदीद ब्रेकिंग सिस्टम और गैर मामूली कारकर्दगी की सलाहियतों के साथ 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। चीन की तेज रफ्तार ट्रेन CR-450 जो इस साल चलने वाली है, अपनी जदीद ब्रेकिंग सिस्टम और गैर मामूली कारकर्दगी की सलाहियतों के साथ 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। चाइना अकेडमी ऑफ रेलवे साइंसेज कॉरपोरेशन में CR-450 के कलीदी निज़ाम सख्त टेस्टिंग के मरहले से गुजर रहे हैं, जिसमें इसका अहम ब्रेकिंग सिस्टम भी शामिल है। ब्रेकिंग सिस्टम के अलावा CR-450 खुसूसी डिजिटल मॉडल्स के जरिए ट्रैक्शन पावर, नेटवर्क कंट्रोल और सेफ्टी मॉनिटरिंग में कलीदी इजाफे को ज़म करता है। इन मॉडल्स के जरिए साइंसदानों ने ट्रेन की शक्ल और वजन को बेहतर बनाकर तेज रफ्तार, ज्यादा मुस्तहकम ब्रेकिंग सिस्टम और कम तवानाई की खपत के लिए बेहतर बनाने का हल तलाश किया है। हालिया तजर्बाती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 10 टन के वजन के साथ मौजूदा CR-400 फिक्सिंग ट्रेन के मुकाबले में तकरीबन 12% हल्की है, जो 20% कम मज़ाहिमत और तवानाई की खपत के साथ चल सकती है। चीन का पहला इंसान बरदार हवाई जहाज मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। A700 ने 30 मार्च को सुबह होबी में अपनी पहली आजमाइश परवाज मुकम्मल की थी। चीन का पहला खुद साख्ता इंसान बरदार सिविल हवाई जहाज AS700 जियांग्यून उभरती हुई लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी और हंगामी रद्द अमल, फ़ज़ाई सर्वे और मवासिलात जैसे दीगर वसी शोबों में ज़्यादा किरदार अदा करेगा। AS700 ने 30 मार्च को वस्ती चीन के सूबे होबे में अपनी पहली आजमाइशी परवाज मुकम्मल की है। दिसंबर 2023 में चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने AS700 के लिए एयरशिप टाइप सर्टिफिकेट जारी किया। पहला कमर्शियल AS700 इस साल के आखिर तक फराहम किया जाएगा। तैयारे के मुकाबले में ये जहाज बुनियादी तौर पर सुस्त रफ्तार और बहुत कम ऊंचाई पर परवाज करता है। सयाहत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि सयाहों को कम ऊंचाई और कम रफ्तार से मनाजिर देखने की ख्वाहिश होती है। सिंगल कैप्सूल इंसान बरदार हवाई जहाज में सिंगल पॉइंट लैंडिंग गियर है।
اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 150.4 کلو گرام، زیادہ سے زیادہ پرواز کی حد 700 کلومیٹر اور اڑان کا زیادہ سے زیادہ وقت 10 گھنٹے ہے۔ یہ انسان بردار ہوائی جہاز پائلٹ سمیت 10 افراد کو لے جا سکتا ہے۔ ہاٹ ایئر بلون کے مقابلے میں جو اس وقت کم اونچائی والی سیاحتی مارکیٹ میں زیادہ عام ہے، یہ ہوائی جہاز خراب موسم کے اثرات کے خلاف زیادہ مزاحمت کرتے ہیں۔ اہم آزمائشی پرواز نے طیارے کے مزید طویل فاصلے کے جائزے اور بالآخر تجارتی آپریشنز کی راہ ہموار کی ہے۔ فضائی دوروں کے علاوہ یہ فضائی جہاز بنیادی طور پر ہنگامی ریسکیو آپریشنز، ہوا بازی پر مبنی جیو فزیکل ایکسپلوریشن اور دیگر متعلقہ شعبوں میں بھی خدمات انجام دے گا۔ چین کے قابل استعمال مائع آکسیجن مٹی کے تیل کے انجن کی لگاتار 2 ایگنیشن ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیے۔ انجن کی ترقی کے عمل کے دوران متعدد اہم انڈیکس کا ٹیسٹ میں جائزہ لیا گیا۔ چائنا ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن CASC اکیڈمی نے کہا ہے کہ چین نے 130 ٹن دوبارہ قابل استعمال مائع آکسیجن کیروسین انجن کے لگاتار 2 ایگنیشن ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کیے، جس سے دوبارہ قابل استعمال کیریئر راکٹوں کی پہلی پرواز کی بنیاد رکھی گئی۔ انجن کی ترقی کے عمل کے دوران متعدد اہم انڈیکس کا ٹیسٹ میں جائزہ لیا گیا۔ ملٹیپل سٹارٹ صلاحیت والا انجن موجودہ ہائی تھرسٹ مائع آکسیجن اور کیروسین انجن کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ یہ اپنے وزن اور راکٹ خلائی قبضے کو کم کرتے ہوئے زور کو بڑھا سکتا ہے، اس طرح دوبارہ قابل استعمال راکٹوں کو ممکن بنا سکتا ہے۔ شنزن زونگشان لنک کا سمندر پار پل لوڈ ٹیسٹ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ لوڈ چیک کے دوران 17 کلومیٹر طویل پل پر 80 ٹرکوں کو مقررہ پوزیشن میں کھڑا کیا گیا۔ کراسی لنک کو رواں سال ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ گوانگڈونگ ٹرانسپورٹیشن گروپ کے مطابق شنزن زونگشان لنک کا سمندر پار پل لوڈ ٹیسٹ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ 17 کلومیٹر طویل پل پر مجموعی طور پر 80 ٹرکوں کو مقررہ پوزیشنز میں کھڑا کیا گیا تھا تاکہ ہزاروں گاڑیوں کے بوجھ اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا پل اپنی گنجائش کی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ لوڈ ٹیسٹ میں پل کے دونوں اطراف 35 ٹن وزن والے 9 سے 136 ٹرکوں کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ پل کے ہر حصے کی برداشت کی صلاحیت کی جانچ کی جا سکے اور اس کی کارکردگی کا جامع جائزہ لیا جا سکے۔ 24 کلومیٹر طویل شنزن زونگشان لنک جنوبی چین میں گوانگڈونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا سٹی کلسٹر میں نقل و حمل کا ایک اہم مرکزی منصوبہ ہے۔ یہ ایک زیر آب سرنگ، 2 پلوں اور 2 مصنوعی جزائر پر مشتمل ہے، جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ چیلنجنگ سمندر پار کلسٹر منصوبوں میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کراس سی لنک کو 2024 میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایک بار آپریشنل ہونے کے بعد شنزن اور زونگشان کے مابین سفر کا وقت، جو اس وقت 2 گھنٹے ہے، کم ہو کر تقریباً 20 منٹ رہ جائے گا۔ کینٹن میلہ 15 اپریل سے 5 مئی تک گوانگچو شہر میں منعقد ہوگا۔ میلے میں 3000 سے زیادہ نمائش کنندگان کی شرکت متوقع ہے۔ 135واں چین امپورٹ ایکسپورٹ میلہ، جسے کینٹن میلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 15 اپریل سے 5 مئی تک چین کے بڑے تجارتی مرکزی شہر گوانگچو میں منعقد ہو رہا ہے۔ بہت سے غیر ملکی تاجر اس کینٹن میلے کو اپنی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ میں متعارف کرانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک مختلف خدمات جیسے لاجسٹکس، گودام، ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ مالی اور انشورنس خدمات بھی اس میلے میں موجود ہیں، جس میں 3000 سے زیادہ اعلیٰ درجے کے نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں۔ اربن میں 2025 کے ایشیائی سرمائی کھیلوں کی 300 روزہ الٹی گنتی کے موقع پر تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب میں کھیلوں کے سرکاری موضوعاتی رنگ پیلٹ کی نقاب کشائی بھی کی گئی۔ چین کے شمال مشرقی صوبے ہیلونگ جیانگ کے دارالحکومت ہاربن میں 2025 کے ایشیائی سرمائی کھیلوں کی 300 روزہ الٹی گنتی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں برف اور برف باری کی تصاویر نے جوش و خروش کو بڑھا دیا۔ نویں ایشین ونٹر گیمز کے آفیشیل میسکاٹ پنگوئن ٹائیگر کے ساتھ مسکراتے ہوئے بچے رقص، گانے اور یہاں تک کہ آئس سکیٹنگ کے لیے اسٹیج پر پہنچے۔ ہیلونگ جیانگ میں پیدا ہونے والے چینی شارٹ ٹریک اسپیڈ سکیٹنگ سپر سٹار اور سرمائی اولمپک چیمپئن یونگ یونگ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ایشین ونٹر گیمز کی میزبانی سے لوگ میرے آبائی شہر اور برف سے مالا مال ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کے بارے میں جان سکیں گے۔
تقریب میں کھیلوں کے سرکاری موضوعاتی رنگ پیلٹ کی نقاب کشائی کی گئی اور ایک پروموشنل ویڈیو جاری کی گئی۔ کھیلوں کی نمائندگی کے لیے 4 رنگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو 4 موسموں اور برف کی عکاسی کرتے ہیں، جس کے لیے ہاربن مشہور ہے۔ ہاربن کے آئس سٹی نے، جسے اولمپک چیمپئنز کا شہر بھی کہا جاتا ہے، 8 جولائی 2023 کو 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی میزبانی کے لیے بولی جیتی تھی۔ یہ گیمز 7 فروری سے 14 فروری 2025 تک منعقد ہوں گے۔ مشرق وسطی اور ایشیا کے اسکالرز اور میڈیا پروفیشنلز پر مشتمل وفد نے سنکیانگ ویگور کا دورہ کیا۔ وفد نے سرحدی بنیادی ڈھانچے میں اہم چینی سرمایہ کاری کا مشاہدہ بھی کیا۔ مشرق وسطی اور ایشیا کے دیگر حصوں کے 8 ممالک کے اسکالرز اور میڈیا پروفیشنلز پر مشتمل ایک وفد نے گزشتہ ہفتے شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کا 5 روزہ دورہ مکمل کیا۔ وفد کے ارکان کا کہنا تھا کہ خطے کی جدیدیت اور کشادگی نے ان پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ سنکیانگ کے علاقائی دارالحکومت اورمچی سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے وفد نے مقامی عجائب گھروں اور شہری منصوبہ بندی کے مراکز کا دورہ کیا، جس سے خطے کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کے ساتھ ساتھ اس کی جدید شہری ترقی کی گہری تفہیم حاصل ہوئی۔ مقامی برادریوں اور روایتی بازاروں کے دوروں نے سنکیانگ کی متنوع ثقافت اور مقامی لوگوں کے متحرک طرز زندگی کا تجربہ فراہم کیا۔ وفد کے ارکان نے کہا کہ چین سے باہر پڑھی جانے والی خبروں کے الٹ یہاں کی جگہ بہت محفوظ ہے اور یہ چین کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں کم ترقی یافتہ یا غیر محفوظ نہیں۔ گوانگژو آٹو موبائل گروپ موٹر کارپوریشن کی سنکیانگ شاخ کا دورہ کرتے ہوئے مندوبین نے کہا کہ وہ کمپنی کی نئی انرجی وہیکل ٹیکنالوجی اور اس کی جدید سہولیات سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وفد نے علاقے میں ایلی قازق خود اختیار پریفیکچر کا رخ کیا اور قازقستان سے متصل ایک مصروف سرحدی شہر خرگوز کا دورہ کیا اور سرحدی بنیادی ڈھانچے میں اہم چینی سرمایہ کاری کا مشاہدہ کیا، جو مقامی اقتصادی ترقی کا ایک اہم محرک ہے۔ چین کے سنکیانگ ویگور خود مختار علاقوں میں موسم بہار کے خوبصورت مناظر ہر طرف بکھر گئے۔ ٹورگن ٹاؤن شپ میں خوبانی کے، جبکہ تمیکسوک میں آلو بخارے کے پھول سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں موسم بہار کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سفر کرنے والے سیاح مقامی لوگوں کی آمدنی میں اضافے میں مدد کر رہے ہیں، جس سے خطے میں دیہی بحالی میں تیزی آ رہی ہے۔ ٹورگن ٹاؤن شپ میں خوبانی کے پھولوں کے کھلتے ہی چین بھر سے سیاح خوبصورت مناظر دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ ٹورگن ٹاؤن شپ میں 100 سے زیادہ گھرانوں نے بڑھتی ہوئی سیاحت کی صنعت کے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے آزاد جیسے گاؤں والوں نے پھول دیکھنے کے موسم کے دوران اپنے کھانے پینے کی دکانوں کو پھلتے پھولتے کاروبار میں تبدیل کر دیا ہے اور اب یہاں رہائشی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تمکسوک میں، جو صحرائے تکل مکان کے مغربی کنارے پر واقع ہے، آلو بخارے کے پھول دیہی مناظر کی زینت بنتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں مقامی برادری نے اپنی زرعی مصنوعات کے لیے ایک صنعتی سلسلہ تیار کیا ہے، جس سے گھریلو آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 667.26 ہیکٹر پر پودے لگانے اور 600 ملین یوان کی سالانہ پیداواری قیمت کے ساتھ سنکیانگ کا مقصد 2035 تک پھولوں کی ایک جامع صنعت قائم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مشن کے ناظم الامور ڈائی بینگ نے اجلاس میں ایران اسرائیل حملے کے حوالے سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال غزہ تنازع کا تازہ ترین پھیلاؤ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطی کے مسئلے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مشن کے ناظم الامور ڈائی بینگ نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر مہلک حملے پر اسرائیل پر ایران کے جوابی حملوں پر اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ موجودہ صورتحال غزہ تنازع میں کشیدگی کے پھیلاؤ کی تازہ ترین مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین متعلقہ فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ زیادہ سکون اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور اپنے اختلافات اور تنازعات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مقاصد کے مطابق حل کریں تاکہ مزید کشیدگی کو روکا جا سکے۔ دائی نے کہا کہ غزہ تنازع کے بعد سے بین الاقوامی برادری نے غزہ میں ناقابل قبول انسانی تباہی کی مذمت کی ہے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بھی شدید تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح ایک طویل تنازع خطے میں کشیدگی کو بڑھائے گا اور سنگین پیچیدہ اثرات کا سبب بنے گا۔
चीनी नुमाइंदे ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल याद दहानी है कि फ़लस्तीन का मसला मशरक़ वस्ता के मसले में मरकज़ी हैसियत रखता है और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तवील मुद्दती सलामती पर मुनहसिर है, जिसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 2728 पर अमल दरामद में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखुसूस असर व रसूख रखने वाले ममालिक पर जोर देता है कि वो ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीन में वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट में अवाम ने खूब दिलचस्पी का इजहार किया। शुरका रक्स, कश्ती की रेस और सकाफती शो से भी लुत्फानंदोज होते रहे। दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट में खुशामदीद। रगस, कश्ती की रेस, सकाफती शो और परेड। जी हाँ, यह है चीन के सूबा यूनान में वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल। यहाँ हर कोई बहुत के साथ इंतजार कर रहे हैं, जो शहर पहले ही हो रहा है। वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल दरअसल ताई कौमियत के लोगों के लिए नया साल है और ये जुनूब मशरिकी एशिया के बहुत से ममालिक में भी मनाया जाता है। मैं तैयार हूँ। ताई लोगों के दिलों में वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल बहुत मुक़द्दस है और वो सबको अपने साथ मिलकर अपना त्योहार मनाने के लिए खुशामदीद कहते हैं। लोगों के दरमियान इत्तेहाद यहाँ साफ नजर आता है। मुझे उम्मीद है कि दुनिया भी ऐसा ही कर सकती है, जो हर कोई एक दूसरे की सकाफत और दुनिया की खूबसूरती का इश्तिराक करता है। रोजमर्रा जिंदगी में घर के अलावा अपना ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारते हैं। आजकल जहां हर चीज जदीद होती जा रही है, वहीं स्मार्ट दफ्तर का रुझान भी फरोग पा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम हर रोज घर के अलावा अपने दिन का सबसे ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं? ये शायद दफ्तर है, कम से कम 8 घंटे। अगर ऐसा नहीं है तो आप यकीनन छुट्टियों पे हैं। इस दौर में जहाँ हर चीज स्मार्ट है, हमारे दफातर कितने स्मार्ट हो सकते हैं? आइए आज मिलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी चीनी ताउस नौरीन और मैं हूँ एहतसामुल हक और आज हम मौजूद हैं एक स्मार्ट ऑफिस बिल्डिंग के सामने। तो आइए इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। चलें। ओह, ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, यानी किसी बटन को दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये महज इत्तेफाक है? परेशान न हो जनाब, ये दफ्तर बहुत स्मार्ट है। जी हाँ, हमने शायद पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, इसीलिए ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल सका। यानी इसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, इससे यहाँ काम करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। तहिला कंट्रोल सिस्टम के अलावा पूरी इमारत में मुतअद्दिद AI कैमरास भी नस्ब हैं, जिनसे दफ्तर के कोने कोने की निगरानी की जाती है, जो आपको हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है। नौरीन, ये जगह न सिर्फ सादा और कुशादा है, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि ये बहुत आरामदेह भी है।
ये जनाब आरामदेह इसलिए है, दफ्तर का पूरा माहौल बहुत स्मार्ट है, आपको रोशनी बहुत आरामदेह महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ स्मार्ट रोशनी सिस्टम हर वक्त मौसम और वक्त के मुताबिक रोशनी की चमक को एडजस्ट करता है ताकि मुलाजमी हमेशा एक आरामदेह रोशनी वाले माहौल में काम कर सके। और साथ ही साथ दर्जा हरारत भी बहुत मौजूद है, आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दर्जा हरारत के लिए कंट्रोल सिस्टम भी हर वक्त कमरे में दर्जा हरारत की निगरानी करता है और यकसा दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए भी एसी को खुद ब खुद एडजस्ट करता है। जबरदस्त। तमाम ऑपरेशंस एक क्लिक के साथ इस छोटे स्विच के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। जब आप वर्क मोड पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिस्टम खुद ब खुद एडजस्ट होने लगेगा। परेशान न हो, ये बिजली की बंदिश नहीं है। अभी दोपहर के 1 बजे हैं, निज़ाम खुद ब खुद लंच ब्रेक मोड में बदल जाता है। नौरीन, मेरा ख्याल है कि यहाँ काम करने का तजुर्बा और तरीका भी बहुत मुनफरिद होगा। हाँ, जिससे मीटिंग की अपॉइंटमेंट आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस रूम की दस्तयाबी को भी चेक कर सकते हैं और आप स्मार्ट बुकिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप शुरा को भी आगाह कर सकते हैं। जो आपने अभी लाइटनिंग और टेम्परेचर के स्मार्ट निज़ाम देखे हैं वो यहाँ भी हैं, यानी मीटिंग एक मौसर और आरामदेह माहौल में होती है। बिल्कुल। जनाब सच बताएंगे, क्या आपको कभी तवील मीटिंग के दौरान उलझन महसूस होती है? हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है और यकीनन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जी बिल्कुल, और खुशी की बात यह है कि इस वक्त ये मसला स्मार्ट दफ्तर सिस्टम से हल किया जा सकता है क्योंकि उनकी अक्सर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से होती है और स्मार्ट दफ्तर में इसी तरह के हवा की निगरानी का सिस्टम नस्ब किया जाता है। जब हवा में नुकसानदेह मादे ज़्यादा होते तो फौरी हवा को साफ करने वाले आलात को फाल किया जा सकता है। जी, तो इस तरह से जो इंटेलिजेंट सिस्टम है ये आपको हमेशा तरोताज़ा रख सकता है। जनाब स्मार्ट दफ्तर के निज़ाम के पीछे आपके सामने ये आलात है AIoT यानी AI प्लस IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से वाकिफ़ हैं, यानी इंफॉर्मेशन सेंसिंग डिवाइसेस के ज़रिए किसी भी चीज़ को नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मसनूई ज़हानत के साथ मिल जाता है और बिग डेटा और मशीन लर्निंग से खिदमात को बेहतर बनाया जा सकता है। जनाब आपके सामने यह आलात AI से एक दूसरे के साथ मिलकर सालिफ की ज़रूरियात के मुताबिक काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ी उलझन में हों। AIoT दर हकीकत क्या है? सादा लफ्ज़ों में इंटरनेट से चीज़ों को जोड़ा जाता है और मसनूई ज़हानत चीज़ों को सोचने और फैसला करने की सलाहियत फराहम करती है। जनाब स्मार्ट दफ्तर AIoT की एप्लीकेशंस का एक छोटा सा मंजरनामा है। इस वक्त बहुत से शोबों में AIoT की मैच्योर सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही हैं। जी बिल्कुल नौरीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की जिन मैच्योर सर्विसेज की आप बात कर रही हैं, मैंने देखा है कि उनके इस्तेमाल से खेतों में फसलों को पानी लगाया जाता है और इसके अलावा टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त की जाती है और इसके अलावा जो बच्चे हैं खास तौर पर वो एक सेहतमंद और महफूज माहौल में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे तो जिंदगी बेहतर बन गई है, स्मार्ट बन गई है। 5G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी की मुसलसल तरक्की के साथ स्मार्ट होम्स, स्मार्ट फैक्ट्रीज वगैरह लोगों की नज़रों में आते रहते हैं। सड़क पर चलते वक्त शहर में हजारों सेंसर्स ट्रैफिक की सूरत हाल को उसी वक्त आपको बताते हैं।
जब आप अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका पार्सल किस शहर के किस मुकाम तक पहुंच चुका है। दफ्तर में आपको आरामदेह काम का तजुर्बा मिल रहा है। जब आप घर पहुंचे तो आप स्मार्ट स्पीकर से लाइट्स ऑन करने और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए कह सकते हैं। बिस्तर पर लपेटें तो स्मार्ट AI का आरामदेह दर्जाए हरारत आपको सोने में मदद देता है। तरक्की के हजारों साल बाद आखिरकार चीजें स्मार्ट दिमाग की वजह से पहुंच सकती हैं। ये सब बनीनो इंसान की बेहतरी मदद है। जनाब, यहाँ मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स जिन कंपनियों ने खुद तैयार की है, जो न सिर्फ मुल्की सतह पर इस्तेमाल हो रही है बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक को भी स्मार्ट सर्विसेज फराहम कर रही हैं। जी हाँ, और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मेरे हमवतन पाकिस्तानी भी AIoT की सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। चीन एक कदीम मुल्क है, लेकिन बेमिसाल रफ्तार और अज़म के साथ डिजिटलाइजेशन और जहानत के एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। मसनूई जहानत न सिर्फ हमारे काम और जिंदगी को आसान बनाती है बल्कि जिनकी इक्तिसादी तरक्की के लिए एक नई मियारी पैदावारी कुव्वत और जिनकी मईशत की बैनुल-अक़वामी मुसाबिकत का एक अहम हिस्सा भी बन गई है। हमें यकीन है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी की लहर में चीन दुनिया को जहानत और ताकत फराहम करता रहेगा और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करेगा। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। खोंगचू चीन का इंतहाई दिलचस्प लोक खेल है। चीनी जबान में खोंग का मतलब खाली और चू का मतलब बांस है। खोंगचू मिंग शाही खानदान के दौर के सकाफती आसार में भी शामिल है। इसकी तारीख 600 साल से भी ज्यादा कदीम है। ये एक इंतहाई दिलचस्प चीनी लोक खेल है। छोटा खोंगचू उछलने और वापस मुड़ने के दरमियान फौरी तौर पर बदल जाता है। हाथ बाईं और दाईं लहराता है और रस्सी ऊपर नीचे उड़ती है। खोंगचू कितनी ही तेजी से आसमान की तरफ जाए और जमीन पर आए, वो इस पतले जादुई धागे के खोंचों में ही रहता है। हैरत अंगेज, आइए आज हम खोंगचू देखें और इस रिवायती खेल की दिलकशी को महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रूसी और मैं हूं रिजवान अब्बासी। ज़िंदा कौमें हमेशा अपने तहजीब व सकाफ़त को अपने साथ संभाल के रखती हैं। अच्छा चूशी साहिबा, अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ के जो प्ले ग्राउंड्स हैं या जो पार्क्स हैं, वहाँ पर नौजवान एक बड़ा एक मखसूस किस्म का खेल खेल रहे होते हैं। खोंगचू उसका नाम है, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी हाँ, खोंगचू चीन का एक लोक खेल है और आज हम बेइजिंग खोंगचू म्यूजियम में आए हैं और खोंगचू के बारे में जानते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए। खोंगचू चीन का एक बहुत पुराना रिवायती खिलौना है। ये सबसे पहले युआन शाही खानदान के दौर में इस्तेमाल हुआ और इसने लड्डू की सी शक्ल इख्तियार की। लोगों ने इसे तेज घुमाने के लिए चाबक का इस्तेमाल किया। वक्त के साथ साथ लोग लड्डू बनाने के लिए हल्के बांस और लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे और यह तेज रफ्तारी से घूमने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह यह मकबूल खेल खोंगचू में तब्दील हुआ। देखें, पुराने ज़माने में इस खेल के कई नाम थे, जैसे फेंग हुलू, खोंगजोंग, छलिंग वगैरह, और अब इसको खोंगचू कहते हैं। चीनी ज़ुबान में खोंग का मतलब है खाली और चू का मतलब है बांस। अच्छा, और इसी मुनासिबत से इसका नाम भी रखा गया है क्योंकि ये अंदर से खाली बांस और कुछ लकड़ी से बनाया जाता है। और आपको पता है जब इसको जब प्ले किया जाता है, जब इसको खेला जाता है, तो तेज़ रफ्तारी से जब ये घूमता है तो इसमें से सीटी की आवाज़, विसल की आवाज़ आती है। जी जी जी, और काफी दिलचस्प मालूम होती है। जी हाँ, देखें। चीन में खोंगचू की एक तवील तारीख है। मिंग शाही खानदान में
तीजिंग जिंगवुल्य यानी शाही दारुल-हुकूमत बीजिंग के मुंजरनामे पर एक किताब में खोंगजू को खेलने और बनाने के तरीके की तफसील दर्ज है। इसके अलावा ये मिंग शाही खानदान के दौर के सकाफती आसार में भी शामिल हैं। इस तरह खोंगजू की तारीख 600 साल से भी ज्यादा है। खोंगजू को इब्तिदा में शाही खानदान के खेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और कदीम ज़माने में नौजवान ख़वातीन के लिए खोंगजू खेलना एक खूबसूरत अमल समझा जाता था। बाद में खोंगजू का खेल शाही महल से आम लोगों तक फैल गया और हर उम्र के लोग इसे खेलने लगे। वक्त गुजरने के साथ साथ खोंगजू एक रिवायती खेल की सूरत इख्तियार कर चुका है। देखें, ये सारे खोंगजू हैं, लेकिन इसका डिजाइन बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी, और काफ़ी वर्सटाइल गेम ये। अब ये डंबल की तरह है, ये अब साथ में स्टैम्प की तरह है, ये प्यालों की तरह लग रहा है जी, ये भी स्टैम्प्स की तरह, और ये बड़ा वाला भी है। ओह यस, अच्छा ये बड़ा राउंड सा ना थाली की तरह लग रहा है। देखें, ये दोनों खोंगजू जिंग के छिंग शाही खानदान के आखिरी बादशाह के इस्तेमाल रहे हैं और असल वाले अब पेरिस म्यूजियम में मौजूद हैं। ये सिर्फ इमिटेशन है। अच्छा, और उस वक्त के बादशाह भी खोंगजू खेला करते थे? जी हाँ, बादशाह के अलावा शुमाली जिंग के शहरी और देही लोगों में भी बहुत मकबूल है। जी, अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि एक तो खेल का खेल होता है, या दूसरा एक्सरसाइज और जो फिजिकल फिटनेस है वो इससे बड़ी अच्छी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तस्वीर देखें, ये साल 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स में फंकारों ने खोंगजू खेलते हुए बनाई थी। जी, और अपनी कदीम रिवायात को इस जदीद दौर में भी इस तरह से जिंदा रखना, ये अपनी सकाफत से मोहब्बत की एक बहुत खूबसूरत निशान है। जी हाँ, ये खोंगजू बहुत बड़ा है और इसे साल 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स की परफॉर्मेंस में इस्तेमाल किया गया था और इसका वजन 20 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा एक तो इतने बड़े साइज का खोंगजू बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और दूसरा इसको हैंडल करना कितना महारत का काम होता होगा। और इस गेम में सीखने को वाकई बहुत कुछ है। जी हाँ। खोंगजू आमतौर पर हाथ से बने होते हैं और एक खोंगजू बनाने के लिए इसे 17 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जिसमें कम से कम 5 दिन लगते हैं। खोंगजू सिंगल वेयर, डबल वेयर और खुसूसी शक्ल के भी होते हैं और इन्हें बनाने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। खोंगजू को खेलते वक्त इसका खिलाड़ी पहले इसे जमीन पर रखता है, खोंगजू के गिर्द रस्सी को लपेटता है, दाईं हाथ को नीचे और बाईं हाथ को ऊपर रखता है, फिर खोंगजू को 10 सेंटीमीटर बाईं तरफ स्लाइड करता है, दाईं हाथ से खोंगजू को उठाता है और फिर सिर्फ दाईं हाथ से जोर लगाता है, बाईं हाथ की ताकत का इस्तेमाल नहीं करता ताकि खोंगजू को हाथ में लहराया जा सके। वाह, देखें कितना जबरदस्त है। अच्छा, ये देखने में तो बहुत मजे का लग रहा है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं? जी हाँ, प्लीज। चलिए आइए।阿姨，您练这个多长时间了？练空竹？哎呦，我练这个得有20多年了，啊，我40岁那会儿开始玩的，今年呢已经60多岁了。哇，我们能今天有幸学一学？那当然可以了。阿姨，和我们试来，一手拿一根杆啊，把这左手往远喽伸，右手线离空竹近，让这个线呢，贴在这个空竹的轴上。然后这是叫贴，然后这叫绕，右手用力向上提，左手配合不用力。咱们可以试一下。और जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो अब मुख्तलिफ और टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करें? Yes, 右手用力，右手抖。Okay, I got it. 右手。 कैसा लगा? बेहतरीन है जी। अच्छा, 2 स्टिक्स हैं जी, एक इसके अंदर वो यूज़ होती है। जो掉了，再往那边转一点，让它。 थोड़ा सा इसके सामने खड़े, इसके सामने। यस, बिल्कुल। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं चूंकि लेफ्ट हैंडर हूँ जोशी साहिबा, तो मैं शायद ये वाला अगर करूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे लिए। नहीं नहीं। हाँ, राइट वाला? यस यस। 这手向外一抛。 वाह। अच्छा, यहाँ से मुश्किल क्लासेस शुरू हो जाती हैं ना? तेज रफ्तार से। हाँ हाँ।
OK。走，好，哇哇哇！好，成了，还真棒。再来一次。नहीं मेरे One more एक्सप्रेशन time. OK。哇哇哇哇！ OK， 1 没问题，没问题，先走，先加速。这样吗？对对，非常好。 OK。 来， क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 哇！ 非常好。哎呀， ये 越多越。 अच्छा चुशी साहिबा, कितना ये हैरत अंगेज खेल है, लेकिन इसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत है। जी हाँ, चीनी जुबान में एक जुमला है कि स्टेज पर 1 मिनट परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज के पीछे 10 साल की मशक की जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और सदियां गुजर जाने के बावजूद भी चीन ने अपना ये खेल जिंदा रखे हुए हैं। और आज का जो प्रोग्राम हमने किया, इसके बाद उम्मीद यही है कि बहुत सारे लोगों को ये चीनी सकाफत जो है इसको देखने का, इससे सीखने का मौका मिलेगा। और बहुत सारे लोग ये जो खेल है ये सीखना चाहेंगे। जी हाँ। चीन भर में पहले खुंजू थी म्यूजियम के तौर पर इस म्यूजियम में लोक रस्म और रिवाज की विरासत, कम्युनिटी से करापट और गैर मादी सकाफती वर्षे की हिफाजत की तीनों खुसूसियात शामिल हैं। यानी एक तरफ ये एक मादी सकाफती वर्षे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है, दूसरी तरफ ये कम्युनिटी कल्चर की तामीर में काम करता है और गैर मादी सकाफती वर्षे की विरासत और एक हमाहंग रहायशी कम्युनिटी की तामीर में तावन करता है। शहरों की तेज रफ्तार तरक्की और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों के साथ खुंजू चीन के रिवायती खेलों में से एक के तौर पर चीनी तारीख की तरक्की का गवाह है और जदीद माशरे पर इसका गहरा असर पड़ा है। खुंजू की सकाफत की हिफाजत और वरासत न सिर्फ चीनी कौम के लिए एक तारीखी जिम्मेदारी है, बल्कि रिवायती सकाफत और कौमी जज्बे को आगे बढ़ाने की दुरुस्त तस्वीर भी है। इस कल्चर की वरासत को कायम रखने के लिए चीनी लोगों की नस्लों को साबित कदमी का मुजाहिरा करते हुए आगे बढ़ाना है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।